Assalamu alaikum and welcome to Let's Learn English Online. Today we are going to discuss the chapter 4 from the English book of class 9 named Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. So let's get started. So let's start the translation of the chapter. The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 622 में मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत की. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, they got furious. यानी जब मक्का मुकर्रमा के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिजरत का पता चला तो वो आग बगोला हो गए. The chiefs were determined more than ever to find them out. यानी सरदारों ने पहले से भी कहीं ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने का तहैया कर लिया. They offered huge rewards and bounties for their captured dead or alive. उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह मुर्दा या जिंदा पकड़ने पर भारी इनाम और कसीर दौलत की पेशकश की. Now let's move towards the second paragraph. The preparation for this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. इस सफर की तैयारी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में की गई. Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha rendered useful services in this regard. Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha ने इस सिलसिले में कारामद खिदमत सर अंजाम दी. She prepared food for this journey. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया. She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. खाना बांधने के लिए कुछ और हाथ ना लगा तो आपने उसे अपने कमरबंद चादर के साथ ऊंट की पुश्त पर बांध दिया. For this service she was given the title of Zatun Natikin by the Rasul sallallahu alaihi wasallam. इस खिदमत पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ज़ातुल नताकीन यानी चादर के दो पलरों वाली का लक़ब अता फरमाया. During the perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इस पुरखतर सफ़र के दौरान ये बहुत मुश्किल था किसी के लिए भी कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खाना पहुंचाए. The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. सिचुएशन यानी उस वक्त जो सूरत हाल थी वो बहुत नाजुक थी और ज़रा सी भी गलती जो थी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के लिए ख़तरनाक थी. The grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anha. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बेटी थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, उन्होंने ये फ़रीज़ा बहुत अजीम तरीके से सरअंजाम दिया. Every night with a pack of food, हर रात खाने की गठरी के साथ, she would quietly venture towards the rugged mountains. वो खामोशी के साथ पथरीले पहाड़ों पर जाती in which lay the cave of Thor, जिसमें गार सोर वाक़ था. She took care of the minute details. वो छोटी से छोटी मालूमात का ध्यान रखती थी इन accomplishing the task, जब वो काम सरअंजाम दे रही होती थी. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night. कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए पथरीला रास्ते से गुजर कर जाना और वो भी मुसलसल खौफ के साथ कि कहीं पकड़ी ना जाए. So let's move towards the fourth paragraph. On the night of migration, हिजरत की रात को, a tribal chief of the disbelievers, यानी काफिरों का सरदार अबू जहल, in a fit of fury, गुस्से में headed towards हजरत अबू बकर सिद्दीक़'s home. यानी हिजरत की रात को जो डिसबिलीवर्स थे, जो काफिर थे, काफिरों का सरदार अबू जहल गुस्से में हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर गया. He began to knock
He began to knock at the door violently. उसने गुस्से से दरवाजा खटखटाया. Addressing हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, he demanded, where is your father? हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुखातिब करते हुए उसने कहा कि तुम्हारा बाप किधर है? She politely replied, उन्होंने नरमी से जवाब दिया, how would I know, मुझे कैसे पता होगा? This response showed the wisdom and courage of हज़रत अस्मा. ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दलेरी और दानिशमंदी को ज़ाहिर करता है. She didn't make a statement that would give him a clue. उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे कोई पता लगाया जा सके. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. उन्होंने उल्टा अबू जहल से ही सवाल कर दिया जिस पर उसे गुस्सा आ गया. He slapped हज़रत अस्मा's face so hard that her earring fell off. उसने इतनी जोर से हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पर थप्पड़ मारा कि उनकी कान की बाली गिर गई. But she remained steadfast. लेकिन इसके बावजूद वो साबित कदम रही and did not reveal the secret और राज फाश नहीं किया. Now let's move towards the fifth paragraph. Her grandfather Hazrat Abu Quhafa was a disbeliever at that time. उस जमाने में उनके दादा अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साहिब ईमान नहीं हुए थे. He was very old and had become blind. वो बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे. He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. उन्होंने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, अस्मा मेरा ख्याल है कि अबू बकर तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़कर सारी दौलत ले गए हैं. इस वक्त आप At this she instantly ran to a corner of the home. ये सुनते ही वो एकदम से घर के कोने पर भागी. She gathered some pebbles. उन्होंने कुछ पत्थर इकट्ठे किए and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. और पत्थर जमा करने के बाद उनको उस जगह रख दिया जहाँ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद अपने दौलत और जवाहरात रखा करते थे. And then she said, Come grandfather, look, he has left all this for us. और फिर कहने लगी, दादा जान आए और देखें, वो सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. उन्होंने कपड़ों को छुआ और सोचा कि सोने और जवाहरात से भरा हुआ है. His concern was elevated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq Razillah Ta'ala anhu had left all his wealth at home. इनके इज़्तिराब की शिद्दत में कमी आकर उन्होंने ये जानकर सुख का सांस लिया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी तमाम दौलत घर छोड़ गए हैं. Now let's move towards the next paragraph. Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा was amongst the early few who accepted Islam. यानी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन चंद अव्वलीन लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम पहले कबूल किया. She was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq and step-sister of Hazrat Aisha Siddiqa रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सौतेली बहन थी. She was the wife of Hazrat Zubair bin al-Awwam. वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी थी and mother of Hazrat Abdullah bin Zubair रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा थी. She died at the ripe old age of about 100 years. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तकरीबन 100 साल की पुख्ता उम्र में वफ़ात पाई. Hazrat Abdullah bin Zubair radiallahu ta'ala anhu used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha and his mother. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि उन्होंने अपनी खाला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपनी वालिदा हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज़्यादा किसी को फ़याज़ और कशादा दिल नहीं देखा. Hazrat Asma Razila Ta'ala Anha was so generous that she sold her inherited garden and gave all the money to the poor and the needy. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस कदर फ़याज़ थीं कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपनी बहन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद एक बाग वर्से में मिला. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसे फ़रोख्त कर दिया और तमाम पैसे गरीबों और मोहताजों में बांट दिए. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. कभी भी कोई शख्स उनके दर से खाली हाथ नहीं लौटा.
Now let's move towards the seventh paragraph. Hazrat Asma Razila Ta'ala anha will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. Hazrat Asma Razila Ta'ala anha को उनकी जुर्रत फयाजी और अक्लमंदी की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा. She had resolute faith in Allah Almighty. आप रज़ी ताला अन्हा कादिर मुतलक पर पुख्ता यकीन रखती थीं. Her life would always be a beacon of light for all of us. आप रज़ी ताला अन्हा की हयात हम सब के लिए हमेशा रोशनी का मीनार रहेगी. So this is it for today. See you in the next video. Just stay tuned with Let's Learn English Online for more educational videos.